to all the students and faculty of Purnima Group. Today we will discuss about various aspects of intellectual property rights, particularly patents and trademarks, and we will also discuss little bit about copyrights and industrial design also. So, most of the students have seen these symbols like C in the circle, R in the circle, TM or patent pending. So basically, most of you identified these symbols somewhere in shop, somewhere in market, somewhere on the product, like CD of a Microsoft may contain copyright C in the circle 2020, like this, TM on a product, R on a product, patent pending on a product. Okay, it might be a pharmaceutical product, it might be a mechanical product. So basically, these symbols are directly or indirectly related to intellectual property rights, that the particular aspect has been protected by the concerned business house or the concerned person. We have a concept of registration of our civil property. Like if you have a car, you have the registration certificate issued by the government that the car belongs to you. Suppose you purchase a house, you have a sale deed, you have a assignment deed, which confirm that the house belongs to you. In the same way, when you purchase a laptop, you are provided with an invoice or bill, which indicates that this particular laptop belongs to you now because it has been sold to you. So there is a system which establishes ownership over a particular goods or particular service. In the same way, for our intellectual property, there is a system of registration. If you want a like PIET, Purnima Institute of Engineering Technology, PIET is a trademark. So government will issue a certificate if you apply that PIET belongs to you. No one can use word PIET in general. If you develop a new design, like a design of a car, design of a bicycle, then you can register this design also with a design certificate. Then if you develop a novel inventive process or a product which is inventive and novel, then we can have patent protection, and certificate is issued for that also. In the same way, if you go for writing a research paper or a poem or a novel, then you can go register it under literary work, that is copyright. If you write a software code, then you can also register it as a copyright. If you develop a painting or a sculpture or a artistic work, then also you can go for copyright. If you develop some movies, cinematographic pictures, audiovisual work, then also you can go for copyright. So basically, there are 4 types of intellectual property to be discussed. One is the copyright, one is the trademark, one is the patent, and one is the design. आप लोगों ने देखा होगा जैसे आपकी सिविल प्रॉपर्टी, जैसे आपका कार है, आपका हाउस है, आपका लैपटॉप है, इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि ये प्रॉपर्टी आपको बिलोंग करती है थ्रू सम मैकेनिज्म. इन द सेम वे हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी एक प्रोटेक्शन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से बाय वे ऑफ सर्टिफिकेट, इशूइंग अ सर्टिफिकेट. So both properties, whether the physical property or the intellectual property, are the statutory rights granted by the government of India. अब थोड़ा ट्रेडमार्क का हम लोग देखते हैं. जैसे ट्रेडमार्क इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. आप लोग देखिए, ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है जो मार्केट में अवेलेबल है फॉर सेल. आप लोग इसको परचेज करने से पहले सोचेंगे कि मैं परचेज करूं ना करूं. व्हाई? बिकॉज इट्स अ सिंपल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर. इसमें कोई लेबल नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा आपको इस क्वालिटी का. इवन दो वेंडर आपका नॉन है, आपसे कह रहा नहीं सर बहुत अच्छा पानी मैंने खुद ने पैकेज करवाया, इसकी सर्टिफिकेशन मेरे पास सब कुछ है, फिर भी आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे इसकी परचेज के लिए. लेकिन जैसे ही वो वेंडर एक हल्का सा चेंज करता है, इसको उसकी लेबलिंग करवा के देता है, तो आपका ट्रस्ट जस्ट 3-4 टाइम्स हो जाएगा जस्ट बाय दिस लेबल. इस लेबल की कॉस्टिंग 20-25 पैसे अगर आप उसको रिप्रोड्यूस करोगे. लेकिन जो इसकी पानी की जो वैल्यू है, इसकी जो ब्रांड की वैल्यू है, पहले पानी बेचने में प्रॉब्लम आई, नाउ इट इज इजीली सेलेबल. सो दिस द वैल्यू ऑफ ब्रांड. अब बिस्लरी को पता है कि ये लेबल लगाने से उसकी उस पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है. तो यू कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी. इसीलिए बिस्लरी वाला चाहता है कि आप इस प्रॉपर्टी को मिसयूज ना करें, आप इससे मिलते जुलते नाम को न यूज करें, ताकि कस्टमर कंफ्यूज ना हो और वो बिस्लरी परचेज की जगह दूसरा प्रोडक्ट परचेज ना कर ले. एग्जांपल देखिए आप, ये प्रोडक्ट देखिए आप, बिस्लरी सेकंड नंबर पे राइट से. अब बाकी देखिए आप, बेल्सरी, बिल्सरी, ब्रिस्लरी. तो व्हाट इज हैपनिंग? People are trying to tamper the property, intellectual property of the name Bisleri. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग मिसयूज करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी का. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जनरली उस पर इंफ्रिंजमेंट का केस कर सकते हैं, उस पर सीज एंड डिजिस्ट कर सकते हैं, उसको उसके माल जब्त करा सकते हैं हम लोग.
लिटिगेशन डाल सकते हैं, हम कंप्लेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो जनरली कस्टमर क्या होगा, चारों प्रोडक्ट को सेम समझ सकता है। अगर वो ढंग से ऑब्जर्व नहीं करेगा, इफ डोंट ऑब्जर्व केयरफुली, देन व्हाट विल हैपन, ही विल मिसगाइड, ही विल प्रोडक्ट बिल्सेरी एंड उसको लगे बिस्तेरी। और अच्छा, इससे डबल नुकसान कैसे होता है कि बिल्सेरी का सपोज कीजिए प्रोडक्ट क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क और इट्स अ डेटोरेटेड क्वालिटी, तो आप लोग बिना पढ़े सोच सकता है बिस्लेरी के बारे में गलत इमेज बना रहे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेडमार्क का कोई मिसयूज ना करे। कुछ इस तरह के केसेस भी हमने रिपोर्ट देखे हैं, जैसे कि होम लाइट्स एक आईटीसी का ब्रांड है मैजेस्टिक के लिए, कुछ लोगों ने होम लाइट्स करके शुरू करा, तो देखिए आप, यू कैन इजीली सी टू मच सिमिलरिटी, इट इज लाइक यू कैन से डायरेक्ट पायरेसी केस, काउंटरफीटिंग एंड पायरेसी केस। तो ये इस तरह की जो एक्टिविटीज है इसको इलीगल माना गया है ट्रेडमार्क एक्ट में, और आप लोग भी इस चीज से बचें। आप लोग ये मत सोचिए कि स्पेलिंग सर उसकी सी डबल एल ओ तो मेरी एस सी डबल एल ओ है तो हमारा स्पेलिंग डिफरेंट है। फोनेटिक सिमिलरिटी में आल्सो बी काउंटेड। ओके, तो अमूल एम यू एल है तो आप एम डबल ओ एल करके सोचेंगे नहीं सर हम भी मिल्क प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन एंड इट विल लीड टू सम लिटिगेशन इश्यूज। so you should be you should avoid this। जब भी आप ट्रेडमार्क का सिलेक्शन करें तो थोड़ा ध्यान रखें कि आपका जो वर्ड होना चाहिए थोड़ा इन्वेंटिव होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। अब जैसे शादी.com है, बिग बाजार है, स्वीट कॉर्नर है, तो ये डेस्क्रिप्टिव वर्ड है। शादी.com you can easily identify it related to matrimonial affairs. Big Bazaar, you can identify it's a grocery market, grocery shop containing various products. Sweet corner, you can identify it's a related to sweet product. So हमको इसको अवॉइड करना है। हमको कैसे प्रोडक्ट चाहिए, कैसे नाम चाहिए, जोमेटो, स्विगी, कोडेक। जोमेटो से you cannot identify that Zomato belongs to food product, Swiggy belongs to food product. So ऐसे नाम करने से आपको स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि अगर कोई someone use Zomato फॉर फूड डिलीवरी तो आप उस पर कंप्लेंट करोगे तो ही कैन नॉट से कि मेरे को भी जोमेटो तो फूड से रिलेटेड है तो मैंने इसको अडॉप्ट किया, ही डजंट हैव एनी आर्गुमेंट, सो आपको बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा। नाउ यू कैन सी ट्रेडमार्क कैन बी एनी ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी किसको राइटिंग में रिप्रेजेंट कर सके ऑन पेपर, दैट कैन बी ट्रेडमार्क। लाइक रेनबैक्सी, इट्स अ वर्ड मार्क, इट्स अ वर्ड रेनबैक्सी, then it can be an abbreviation V.I.P, it's a word mark, then it can be letter BMW are the letters, then it can be numerals 8 p.m. 5:55 washing cake, okay, then it can be arbitrary word, apple for computers, apple is a fruit and we are using for electronic item, so it's also good trademark, so हम इस तरह का ट्रेडमार्क भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ध्यान कहां पर रखना है, where we should be careful, Starbucks coffee is there, someone opened Starbucks coffee, so you just see Starbucks and Starbucks very similar, and logo is also circular in nature, and in one logo there is a queen, one logo is the Sardarji with the turban and some other wavy lines, so you here also wavy lines, here also wavy lines, so at first instance customer may be confused, okay, Starbucks and Starbucks are same outlet, if he doesn't notice carefully. So what happened, they went for settlement and now Sardar Bucks has changed name to Sardarji Bucks, Sardar Bucks Coffee and Company, now you see Sardarji Bucks Coffee and Company, so you see now they have changed to Sardar Bucks to Sardarji Bucks, so there is no confusion between Starbucks and Sardarji Bucks. Now they have changed the logo also, they are not using the circular logo in the outside the coffee shop, so now customer are confirmed, okay, this is Starbucks is different, Sardarji Bucks is different. So this sort of strategy of amicable settlement need to be applied in certain cases. See, this is a German case, one is Puma, one is Pudel. You just, though Puma and Pudel sounds different, but see the overall impression. In Puma there is a leopard or tiger running over the word Puma. In Pudel there is a word Pudel. Pudel is a breed of dog. So Pudel, the same dog is running slanting over the Pudel. So you just see the both logo are looking very, very similar. So is this allowed? No. It's a case of Germany, but the court says that Pudel to change the logo. So you should also be careful about this type of law. Then Pizza Hut and Pizza Ghar. So Pizza Ghar is also type of infringement. Why? Because customer may perceive that okay, Pizza Ghar is an Indian version or a Hindi version of a Pizza Hut.
to have more outreach. So this type of things are there. So we should avoid just simply translating the trademark and just putting the same type of logo. It may be confusing. And yahoo.com and yahoo.co.in. So yahoo.com was the domain name of yahoo.com, Yahoo Incorporation, and yahoo.co.in was run by Yahoo Akash Arora. So now at the end of the day, court say that if you see both the principal domain, then they are yahoo.com or .in is the second level or third level, whatever it is. So they treated it as a trademark dispute and say that yahoo.co.in should be transferred to Yahoo company. So you cannot say that if your domain name be .com and you just start with .org, .in like this. If the other party is very serious, they can ask you to surrender it, or even may ask for a penalty also. One is BMW is there. It's a famous mark. Someone opened DMW, Deshwar Motor Works, and you see Deshwar Motor Works, and for what purpose? E-rickshaw. But both are means for transportation. So court say that since both are in the same business line, same category of business, transportation, and BMW and DMW are phonetically very much similar. So DMW cannot continue with this name, DMW. So these types of implications are already with the trademark. Now, okay, no issue. For these type of mistakes, okay, it can be any of managed. But in case of medicine, if there is some trademark issue, then it may be fatal or disastrous or life-threatening to a patient. Here you see there are two brand Medjol. One is pantoprazole and one is midazolam injection. Okay. So pantoprazole is for gastric issue and midazolam is for like लोकल एनेस्थेसिया. आपके हाथ में कोई चोट आ रहा है और आपको सर्जरी करना है तो आपको मिडाजोलम इंजेक्शन देके वहां आपको सुन्न कर देंगे, एनेस्थेसिया दे देंगे. और जो जनरली पेंटाप्रोजोल जो मेडजोल जो पेंटाप्रोजोल आ रहा है वो जनरली गैस्ट्रिक इश्यूज वगैरह के लिए, एसिडिटी के लिए काम आता है. ठीक है, आप लोग जनरली यूज, कई लोगों को यूज भी किया होगा कभी. तो बहुत सारे इंजेक्शन फॉर्म. अब सोचिए आप किसी को पेंटाप्रोजोल चाहिए मेडजोल का, उसको मेडजोल मिडाजोलम का इंजेक्शन दे दिया जाए तो उसके लिए कितना नुकसान हो जाएगा, वाइस वर्सा. तो इसीलिए मेडिसिन के केस में काफी ध्यान रखा जाता है कि इस तरह के इश्यूज ना आए, अदरवाइज इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. और आप लोग भी ध्यान दें, कोई मेडिसिन लेके ले तब चेक कर ले एक बार प्रॉपर्ली कि भी कोई किसी तरह का सिमिलरिटी डिस्प्यूट तो नहीं है. कुछ ट्रेडमार्क फेमस है जैसे होंडा है, बाटा है, तोशिबा है, 7 o'clock है. तो आप लोग ये ना सोचे कि होंडा अगर ट्रांसपोर्टेशन या व्हीकल सेगमेंट में तो आप लोग इसका प्रेशर कुकर या फिर आप इसके वाटर बोटल्स बनाने लग जाए, या बाटा तो शूज में तो आप लोग क्या करें, बाटा के नाम से आप लोग पेन बनाने लग जाए. नो, बिकॉज दीज आर फेमस ट्रेडमार्क, सो दे अफोर्ड प्रोटेक्शन इन एवरी प्रोडक्ट और सर्विस, भले वो यूज करे ना करे. तो ये चीज ध्यान रखना है, जहां भी वेल नोन मार्क है तो हमें थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना. अब नेक्स्ट इशू इज कॉपीराइट. आपका लिटरेरी वर्क है, आपने पोएम लिखा, आपने गाना गाया, आपने लिरिक्स लिखे, आपने कोरियोग्राफी करी, आपने म्यूजिक बनाया, आपने मूवी बनाई, ऑल दीज थिंग्स कैन बी कवर्ड अंडर कॉपीराइट. और कॉपीराइट किसके लिए मिलता है आपको? एक्सप्रेशन के लिए. आईडी पे कोई कॉपीराइट नहीं होता. There are 3 movies which story might be similar but their expression is different. उनका locations, choreography अलग होगा, locations might be different, उनके lyrics अलग हो सकते हैं, उनके costumes अलग हो सकते हैं, है ना? So shooting locations different हो सकती है, dialogues different हो सकते हैं, music different हो सकता है, background different हो सकता है. तो story might be similar but expression is different. So कॉपीराइट के केस में क्या होता है, हमको क्या ध्यान रखना है कि कॉपीराइट इज ऑन एक्सप्रेशन नॉट ऑन आइडिया. तो वो काफी इंपॉर्टेंट इशू है जो ध्यान रखना है. अगर मैं कोई फिजिक्स में बुक लिख रहा हूं तो आप भी लिख सकते हैं, तो उसमें न्यूटन्स लॉ भी आएगा, आइंस्टाइन प्रिंसिपल भी आएगा, सब कुछ आएगा, ग्रेविटेशन थ्योरी भी आएगी, लेकिन मेरा एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा, आपका एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा. तो कॉपीराइट इज फॉर एक्सप्रेशन नॉट ऑन आइडिया. और जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, अगर आपने एक सिंपल सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो इनपुट आउटपुट दे रहा है, कुछ सिंपल एनालिसिस कर रहा है किसी प्रॉब्लम का और कोई ज्यादा टेक्निकल इफेक्ट नहीं है उसमें, तो उस केस में यू कैन गो फॉर कॉपीराइट ऑफ द सॉफ्टवेयर कोड. कॉपीराइट के कुछ एक्सेप्शंस हैं. अगर आपके
कॉलेज में अगर आपके टीचर्स आपको नोट्स डिक्टेट करा रहे हैं या फिर आप लोग कुछ फोटोकॉपी कर रहे हैं कुछ नोट्स का फॉर स्टडी पर्पज, तो इन चीजों को कॉपीराइट से बाहर माना गया है। इट मीन्स अगर आप फोटोकॉपी कर रहे हैं कुछ 2 चैप्टर की केवल स्टडी पर्पज से, तो आपके कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है। या आपकी फैकल्टी आपको नोट्स डिक्टेट करा रहे हैं किसी बुक से, तो वो भी कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के बाहर है। या फिर आपने कोई प्ले किया सोसाइटी को बेनिफिट के लिए और अवेयरनेस, तो भी और ऑडियंस आपको नॉन पेइंग है, कोई पेमेंट नहीं ले रहे आप किसी से, तो वो सब चीजें कॉपीराइट के बाहर आई। लेकिन अगर आप बुक का फोटोकॉपी करा के अपना नाम लिख के उसको बेचते हैं और उसका ऑथर कोई और है, पब्लिशर और है, तो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। नाउ थर्ड एस्पेक्ट इज डिजाइन। यहाँ पर आप देयर आर 3 एस्पेक्ट्स। वन इज माइक्रोस्कोप, फर्स्ट माइक्रोस्कोप, सेकंड माइक्रोस्कोप, थर्ड माइक्रोस्कोप। बोथ हैव सेम रिजोल्यूशन कैपेसिटी, सेम फंक्शन, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है आपका? शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन का। यू सी ऑल हैव डिफरेंट शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो ये किस में आएगा? आपका डिजाइन प्रोटेक्शन में आएगा। ठीक है, तो जहां पर अगर आपको फंक्शनलिटी सेम हो लेकिन शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, आउटर अपीयरेंस डिफरेंस हो, तो वहां आप लोग गो फॉर डिजाइन रजिस्ट्रेशन। इनका दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन क्या डिफरेंट है? शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी आपको डिजाइन में आएगा। यहाँ पर देखिए आप, सेम आर्टिकल सेम फंक्शन बट डिफरेंट शेप, तो इट विल कम अंडर डिजाइन। See this bottle. This is a, ये किसका बोतल है? You can easily identify it's a Kinley bottle. So Kinley bottle का मतलब आप you can easily identify Kinley, इसके shape and configuration you can identify it's a Kinley bottle. So it means shape is also very important part of a intellectual property. आप पायलट पेन को दूर से देख के पहचान सकते हैं इट्स अ पायलट पेन। आप सुजुकी, मारुति सुजुकी का गाड़ी देख के या फिर आप हुंडई का गाड़ी देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूसरे इट्स अ व्हीकल ऑफ हुंडई और मारुति सुजुकी। It means their shape is unique, so it's also intellectual property. How you can register the design? It's very simple. You start with the front view, left side view, right side view, then top view, then back view, then perspective view, or sometimes put your bottom view also, sometimes possible. So if you can submit all these views to the design office, then they can register your design. Now we will come to the very important aspect, which is the final aspect, that is patent. Patent is generally for invention. The invention may either be new product or a new process. It is for non-obvious and technically advanced invention, and the invention which can be used and manufactured in the industry. So basically, it's for novel product and process which is technically advanced and which can be used and manufactured in industry. And please remember, it is for functional aspect. It is not related to some design. Okay, my design is novel, my shape and configuration is novel. It is not a part of patent, and it is not for outer configuration look. It is purely for function. Okay, my compound is more digestible. My compound is more soluble. Then it's a function. My engine is giving more mileage. Then it's a functional aspect. It's not a design aspect. So patent is basically territorial nature. If you apply patent in India, you get rights only in India. You won't get right in Sri Lanka. It is for 20 years, limited years for 20 years. जिस दिन से आप फाइल करते हैं उसके 20 ईयर तक आपको राइट मिलता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये खत्म, लैप्स हो जाता है। तो आप बहुत सारे एरिया में आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, बायोटेक, फार्मास्यूटिकल, बहुत प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैन बी पेटेंट। अब यू कैन सी, आप लोगों के पास सबके पास लैपटॉप होगा, टैब होगा, स्मार्टफोन होगा, इसमें काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक स्टोरेज का कंपोनेंट अलग होता है, मदरबोर्ड अलग होता है, वायरलेस कीबोर्ड अलग होता है, बैटरी अलग होती है, डिस्प्ले अलग होता है। सो ऑल दिस कैन बी पेटेंटेड डिफरेंट वे। डिस्प्ले में भी डिफरेंट पेटेंट, बैटरी में भी डिफरेंट पेटेंट, कीबोर्ड में भी डिफरेंट पेटेंट। सो एंड यू सी बोथ डिफरेंट पेटेंट्स विल कंबाइन टुगेदर मेक अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज लैपटॉप। सो एक डिवाइस के अंदर मल्टीपल पेटेंट्स हो सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। और पेटेंट्स में भी वेरी सिंपल एस्पेक्ट, जैसे कि अफ्रीका में एक साइंटिस्ट थे, मोहम्मद बाबा करके कोई साइंटिस्ट थे, पूरा नाम मुझे पता ध्यान से नहीं आ रहा। तो बेसिकली इन्होंने एक सिंपल से एक, वहां पर रेगिस्तानी एरिया, तो वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू था, प्लस थोड़ा पुअर कंट्रीज में तो इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक सिंपल से एक प्रोसेस से एक इन्वेंशन डेवलप करा। देखिए आप, उन्होंने दो मिट्टी के पोर्ट लिए, फर्स्ट पोर्ट एंड सेकंड पोर्ट,
और दोनों को, एक छोटा एक बड़ा, और दोनों के बीच में देखो एक साथ रखे, दोनों के बीच में मिट्टी सैंड भर दिया और उसमें पानी डाल दिया, उसको मॉइस्ट कर दिया। देन जो आपका मिट्टी वो मॉइस्ट सैंड हो गया। अब सारा गर्मी जो था पोट का वो निकलता जा रहा धीरे धीरे पानी के मॉइस्ट एवेपोरेटर के थ्रू, तो सब्जियां ठंडी रह रही आपकी, और ऊपर से गीला कपड़ा लगा दिया। तो जो इसके अंदर उन्होंने चेक किया, जो बैंगन आपका 27 दिन तक इस पे खराब नहीं हुआ। तो एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी यूज करके भी आपने किसी ने इन्वेंशन किया है। तो देखिए आप, बिल्कुल सिंपल सा एक प्रोसेस है, डैम्प क्लॉथ, वाटर, सैंड, स्टोर्ड फूड, देन द फर्स्ट लेयर एंड द सेकंड लेयर। सो इट्स वेरी सिंपल। इन्वेंशन को बहुत ज्यादा हाई एंड भी नहीं होना चाहिए, कई बार एक सिंपल इन्वेंशन को भी आपका पेटेंट मिल सकता है और आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, बट इट शुड बी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। कोई भी पेटेंट आता है तो उसके लिए हमको कुछ टेस्ट होते हैं, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं पेटेंट ग्रांट होगा नहीं होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं इन्वेंशन और कंसेप्ट क्या है, then we go for whether it's a subject matter that is patent allowed or not, then we check the novelty, then we check the inventive aspect, then we check the utility, then we check whether you disclosure is complete or not, आपने सारे एक्सपेरिमेंट सबमिट किए नहीं किए हैं, आपने एक कंडीशन में आपने उसको चेक किया है कि भाई वो वर्किंग है नहीं है उसका मॉड्यूल, कोई सनलाइट का इफेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई टेम्परेचर का इफेक्ट तो नहीं आ रहा, और कोई बगिंग डिबगिंग इश्यूज तो नहीं है ना। सारा कुछ चेक करके हम देखते हैं कि आपका इन्वेंशन डिस्क्लोजर कंप्लीट है। उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं पेटेंट के लिए, फिर इसका पेटेंट ग्रांट होता है या रिजेक्ट होता है, वो पेटेंट ऑफिस डिसाइड करता है। सो बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स हैं हमारे, नोवेल्टी, इन्वेंटिव एस्पेक्ट और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो आप देखते हैं इससे पहले आयरन यूज करते थे हम काफी जगह, साइकिल्स में, मोटरसाइकिल्स में, कार में, काफी हेवी होता था। अब उसकी जगह में कार्बन फाइबर अलॉय यूज करने लगे, एल्यूमिनियम भी करते हैं लेकिन कार्बन फाइबर अलॉय यूज करने लगे, तो लाइट मेटल है, तो इट्स अ नोवेल्टी, इट्स अ नोवेल मेटल। देन आपने देखा होगा कि आपका जो नॉर्मल बल्ब होता था CFL होता था और LED होता है, दोनों में सेम वोल्टेज जो ब्राइटनेस का डिफरेंस आता है। तो ये क्या, ये टेक्निकल एडवांसमेंट है, इस तरह का एक एग्जांपल है। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है, शुड बी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन इंडस्ट्री। आप जो भी प्रोडक्ट बनाए कंसिस्टेंसी से बने, उसको रिपीट कर सके आप। जैसे आपने कोई टेबलेट बनाई तो टेबलेट दोबारा टेबलेट बने उस प्रोसेस से, तो उसकी सेम एफिशिएंसी हो। ऐसा नहीं कि इसका तो 50% सोल्यूबल है, 25% ही सोल्यूबल है, तो इट शुड बी सेम एफिशिएंसी। दैट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। नाउ सी, एक अदर अप्रोच है जो पेटेंट को देखने की होती है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच। यहाँ पर देखिए, अपने एक बाइसाइकिल है, उसको कितना लेंथ चाहिए, जितना बाइसाइकिल का लेंथ है उतनी उसको स्पेस चाहिए पार्किंग के लिए। तो दिस इट्स अ प्रॉब्लम कि हमें इतने स्पेस रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं इस तरह से देखूं तो देखिए आप, इसमें अगर मैं वर्टिकल बाइसाइकिल को कर दिया इसको स्टैंड को, तो पार्किंग वर्टिकल हो गई, तो आप देखिए कितना सारा स्पेस आपका सेव हो रहा है। At least you are able to save more than 50%, around 60% space you are saving, 70%. So this type of problem solution approach can be as patentable subject matter. अब now see, this is a simple metal rod on the left side. अब now you make a innovation that आपने एक जगह तो एक एंड पे तो शार्पन कर दिया, एक एंड पे टेपर कर दिया, तो आपका पेपर पिन बन गया, जो आप जनरली यूज करते हो चेक वगैरह टाइप करने में। दूसरा देखिए आप, एक आपने एक तरफ एक एंड पे शार्पन कर दिया, दूसरी तरफ आपने एक होल कर दिया, तो इट बिकम अ हैंड नीडल। अब तीसरे पे जाइए आप, इट्स अ मशीन नीडल, आपने टेप शार्पनिंग प्लस टेप होल एट द बॉटम, वो आपको मशीन नीडल बन गया। देन आपने पेपर पिन बना लिया, आपको जस्ट उसको मोल्ड कर दिया, उसको घुमा दिया आपने, तो मोटर ये बन गया आपका पेपर पिन। अब पेपर पिन में आपने ब्लू कलर का देखिए, आपने मेटल चेंज कर लिया, फाइबर लिया है, तो इट बिकम न्यू पेटेंट। देन आपने ड्राइंग बोर्ड बनाया, तो पहले एक तरफ शार्पन कर दिया, दूसरी तरफ हमने प्लास्टिक या फाइबर सपोर्ट दे दिया ताकि वो कोई चुभे नहीं किसी को, तो वो आपने ड्राइंग पिन बन गया। देन आपने एक हार्ट शेप पिन बना दिया, तो नया डिजाइन हो गया, क्योंकि फंक्शनलिटी ऑलरेडी नोन है। तो इस तरह से आप वेरियस इनोवेशंस कर सकते हैं आप। तो मतलब देयर इज नो डर्थ ऑफ इनोवेशन, देयर आर डिफरेंट इनोवेशंस इन द सेम एरिया। जिलेट मैक 3 रेजर आप में से काफी लोग यूज कर रहे होंगे, तो एक सिंपल जिलेट मैक 3 रेजर में मोर देन 50 पेटेंट्स आर देयर। जो इसका इंडिकेटर स्टिक पे जो ब्लू से व्हाइट होता जाता है, वो भी एक पेटेंट है आपका। इसका 3 ब्लेड जो है आपका सिस्टम, जो एक पर्टिकुलर एंगल पे, वो भी आपका एक पेटेंट है। एक है डीएलसी, नीचे ब्लू कलर का डीएलसी कोटिंग है, ये भी आपका पेटेंट पार्ट है। तो इन्होंने कुल मिला के अराउंड मोर देन 50 पेटेंट्स अलग अलग ले रखे हैं। कुछ पेटेंट्स ये हैं जैसे कि इंडिकेटर स्ट्रिप है, कार्ट्रिज लोडिंग सिस्टम है, वैक्यूम चेंबर है, स्टैगर्ड ब्लेडिंग सिस्टम है, पिवट पॉइंट है, काउंटर ग्रिप है, रबराइज काउंटर ग्रिप।
तो ये डिफरेंट एक ही प्रोडक्ट पे मोर देन 50 पेटेंट। अब इससे क्या मैसेज जा रहा है अपना कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका बड़ा एक कॉमर्शियल एस्पेक्ट होता है, वो अपने हर एस्पेक्ट को पेटेंट करती है ताकि कोई कंपटीटर उसका मिसयूज ना कर ले। तो जहां पर कमर्शियल एस्पेक्ट होता है वहां पर पेटेंट की काफी बड़े मायने हैं। अब नाउ वी हैव फर्स्ट टू फाइल सिस्टम। It is very strict rule that we have first to file system. Suppose two friends are working on a same idea. उनको एक insulated bottle बनाना है, ठीक है। अब one person is working in Bangalore, one person is working in Jaipur. तो क्या हो रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं और दोनों का काम लगभग एक टाइम पे खत्म हुआ। जयपुर वाले का 2 दिन पहले खत्म हो गया, बेंगलोर वाले का 2 दिन बाद, लेकिन दोनों को एक दूसरे वाले कुछ पता नहीं है। अब जयपुर वाला जो स्टूडेंट था वो किसी कारण से हॉलीडेज पे अपने पेरेंट्स से मिले, अब्रॉड या कहीं चल गया, इंडिया में कहीं चल गया और उससे 15 दिन पेटेंट डिले कर दिया। इन बिटवीन बैंगलोर वाले ने पहले पेटेंट फाइल कर दिया। तो यहाँ पर राइट्स किसका बनेगा? हु हैज फाइल्ड द फर्स्ट। आपने भले इन्वेंशन 2 दिन पहले उससे कंप्लीट कर दिया हो, आपको यू आर द फर्स्ट इन्वेंटर, लेकिन जो जिसने फर्स्ट अप्लाई किया उसको राइट मिलेगा। तो इसलिए डेट ऑफ फाइलिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ पेटेंट, कुछ इन्वेंशन पेटेंट के बाहर होते हैं जिसको पेटेंट अलाउ नहीं करते हम लोग। उनके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फ्रीवलेस इन्वेंशन कॉन्ट्रेरी टू वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉ, जैसे परपेचुअल मशीन विच गिव्स आउटपुट विदाउट एनी इनपुट। अगर इस तरह कोई पेटेंट अगर कोई क्लेम करता तो पेटेंट उसको ग्रांट नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन पेटेंटेबल लिस्ट में है, ठीक है। मॉरलिटी और एथिकल इश्यूज, अगर आप लोग कहते हो सर हम लोगों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे चोरी करना इजी हो जाएगा, फूड एडल्ट्रेशन बहुत इजी, मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड वो बहुत इजीली हो जाएगा। स्मोकिंग के लिए हमने डिवाइस बनाई है कि इसका इस मेथड से अच्छी स्मोकिंग हो सकती है, या ये सिगरेट काफी यूजफुल है। तो जो मॉरलिटी और एथिकल इश्यूज के रिलेटेड है उनको पेटेंट को भी हम लोग ग्रांट नहीं करते, ठीक है। इस तरह से जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, डार्विन्स थ्योरी है, आइंस्टाइन प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है जो अपने आप में एक इन्वेंशन के लिए प्रिंसिपल है, तो उनको भी हम लोग पेटेंट ग्रांट नहीं करते। मियर डिस्कवरी ऑफ नॉन सब्सटेंस, जैसे कोई आपको कोई मिनरल मिला, जयपुर के बाहर आप कुकस की तरफ गए, वहां आपको कुछ नया मिनरल मिला जो कोयले की तरह काम कर रहा है, इट कैन बी बर्न, या आपको क्रूड ऑयल मिला, या आपको नेचुरल गैस आपने फाइंड करी नीचे, या कोई आपको जंगल में कोई फ्रूट मिला, नया तरह का फ्रूट जिसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू है, तो ये एक डिस्कवरी है, ये इन्वेंशन नहीं है, तो इसको पेटेंट नहीं मिलेगा। देन एक आप लोगों ने जिसको कुछ लोग सीड्स में टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजी बनाते हैं, जैसे कि जिससे सीड नया सीड नहीं बन सकता उससे, तो वो चीजें वो भी आपको पेटेंट के बाहर है, क्योंकि एनवायरमेंट के अगेंस्ट है और इससे हार्मफुल हेल्थ हो सकते हैं, हेल्थ हैजार्ड हो सकते हैं। इस तरह से मियर एडमिक्सचर, आपने पानी के अंदर रेड कलर मिक्सचर वो शुगर बना दिया और बोला सर देखो इट्स अ स्वीट रेड कलर लिक्विड, सो इट्स अ मियर एडमिक्सचर, इसमें कोई इन्वेंटिव एस्पेक्ट नहीं है, एवरीवन कैन थिंक ऑफ, सो इसको पेटेंट के बाहर रखा गया। और मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ मशरूम, एल्गी, मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, मेथड ऑफ सोविंग सीड्स, क्योंकि वी आर एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग कंट्री, सो हमने एग्रीकल्चर के पेटेंट्स को मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को बाहर रखा। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, इंजेक्शन को अप्लाई करना, वैक्सीनेशन करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, रिमूवल ऑफ ट्यूमर, ये जो डॉक्टर जो प्रोसीजर अप्लाई करते हैं ये भी पेटेंट के बाहर है। वरना बड़ी दिक्कत आ जाएगी, एक डॉक्टर प्रोसीजर कर रहा है तो उसको पूछना पड़ेगा कि सर मैं पेटेंट का लाइसेंस लूं, उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, तो उससे उसकी फीस बढ़ सकती है और कस्टमर को या फिर अपने पेशेंट को नुकसान हो सकता है। मियर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ नॉन डिवाइस फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, एक मैंने बॉक्स लिया, उसमें बगल में मैंने एक रेडियो रख दिया, एक बगल में क्लॉक रख दी, घड़ी रख दी, घड़ी टाइम बता रहा है, रेडियो अपना काम कर रहा है, तो दोनों इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई पेटेंट नहीं है। जब तक इसमें आप कोरिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करोगे इस ओवरऑल डिवाइस में, तब तक पेटेंट नहीं हो सकता। जैसे आप लोग कभी जापान गए तो वहां जनरली क्या करते हैं, अम्ब्रेला के साथ टॉर्च और फैन भी होता है, तो अम्ब्रेला अपना काम कर रहा है, पानी को रोक रहा है, आपने बटन दबाया टॉर्च चालू हो गया, आपने बटन दबाया फैन चालू हो गया, तो दे आर वर्किंग independently. So there is a question someone in the same way, invention related to atomic energy are also prohibited for invention, like thorium, germanium, plutonium, all these radioactive element related inventions are barred from patent, so there we should be taken care of. New use of a known concept is non patentable. Use of binder clip for holding computer cable terminal is not patentable invention. देखिए बाइंडर क्लिप आप लोग देखते हैं पेपर वगैरह टाइप करने में काम आते हैं, अब कुछ लोगों ने क्या किया, इसको टेबल पे लगा दिया और
इस पे कंप्यूटर पेरिफेरल इस तरह से सेट कर दिए ताकि वो नीचे नहीं आए, पैरों पे नहीं आए, गिरे नहीं। तो इस तरह की चीजें जो सिंपल एक सिंपल यूज है नॉन टेक्नोलॉजी का, नॉन आर्ट का, तो उसको भी पेटेंट के बाहर रखा गया। अब जैसे बायोमेट्रोप्रोस्ट एक कंपाउंड है जो ग्लूकोमा और आई डिसऑर्डर में काम, मैनेजमेंट में काम आता है। अब इसको अगर आपने सेम कंपोजिशन को अगर आपने डीपिगमेंटेशन से हाथों में आपके कुछ हाथों में व्हाइटनेस हो जाती है, कई लोगों को देखा को व्हाइट हो जाती है बॉडी, तो वहां पर अगर आप लोग इसको यूज करोगे सेम कंपोजिशन को, तो इट्स मियर न्यू यूज, क्योंकि कंपोजिशन ऑलरेडी नोन। तो इन चीजों को पेटेंट के बाहर रखा गया। तो ये सब चीजें पेटेंट के बाहर आएंगी। पैरासीटामोल आपका फीवर के लिए काम आता है, अगर आप लोग बोलेंगे पेन रिलीविंग में काम आ रहा है तो भी पेटेंट के बारे में, क्योंकि मियर न्यू यूज। निमोडिपिन है आपकी, अगर ब्लड प्रेशर में काम आती है, अगर सेरिब्रल डिसऑर्डर में कोई यूज करता है सेम कंपोजिशन तो भी नॉट पेटेंटेबल है। एस्पिरिन है, एनाल्जेसिक है, अगर आप इसको कहते हो सर मैं सेम कंपोजिशन कार्डियोवैस्कुलर में काम ले सकता हूँ, तो इट्स अ मियर न्यू यूज, कुछ भी नहीं है, मेडिसिन आपने सेम मेडिसिन में यूज कर लिया तो ये पेटेंट के बाहर। तो न्यू यूज ऑफ अ नॉन मेडिसिन इज नॉट पेटेंटेबल। जैसे कि अभी देख रहे हो हाइड्रोक्लोरोक्सीक्विन, देखा होगा आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये भी कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि इट्स यूज्ड टू ट्रीट कोविड इन्फेक्शन। तो ये क्या कर रहे हैं, वो सेम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, इन्होंने कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं किया। तो ये न्यू यूज ऑफ अ नॉन सब्सटेंस है, तो पेटेंट के बाहर आएगा, आप इसको पेटेंट नहीं कर सकते। कुछ केसेस आप लोगों ने देखे होंगे पहले, ये इस तरह के टर्मरिक वाले, जो हल्दी का पेटेंट और नीम ऑयल का पेटेंट, बासमती के पेटेंट जो हुए थे, जामुन के पेटेंट हुए थे अमेरिका में, बाद में हमने उसको रिवोक कर लिया है। रिवोक क्यों किया है? क्योंकि हल्दी की प्रॉपर्टी या नीम ट्री की प्रॉपर्टी ऑलरेडी नोन है, इट्स ऑलरेडी नोन, वन सेकंड, इट्स ऑलरेडी नॉन प्रॉपर्टी। तो जो अगर ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी नोन है तो उस पर पेटेंट नहीं ले सकते। तो अमेरिकन ने इसका मिसयूज कर लिया था, क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं थे या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो हमने जब सर्च किया तो हमें अरेबिक और उर्दू में डॉक्यूमेंट मिले कि हल्दी की प्रॉपर्टीज एंटीसेप्टिक है। हमने डॉक्यूमेंट ऑथराइज उनको ट्रांसलेट करा के उनको सबमिट किए, तो पेटेंट रिवोक होकर कैंसिल हुआ है। तो ये सब चीजें देखने लायक होती है कि अगर कोई भी कंसेप्ट आपका ऑलरेडी नोन है, भले वो कोरियन में हो चाहे जापानीज में हो, तो भी आप उसको पेटेंट नहीं कर सकते। इस तरह से नीम ट्री वाला भी आपका पेटेंट रिवोक हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी नोन थी कि नीम ट्री यूज्ड एज ए एंटी फंगल। अब कुछ आपके सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज होते हैं आपके पेटेंट में। अगर सिंपल मैथमेटिकल मॉडल है या साइंटिफिक थ्योरी है या प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है या सिंपल सॉफ्टवेयर है, तो ये पेटेंट के बाहर, यू कैन नॉट पेटेंट दोस थिंग्स। बट लेकिन अगर आपका कोई कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर इज नोवल और हार्डवेयर इज स्पेसिफिक, देन वी कैन थिंक ऑफ पेटेंट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। जैसे कि आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है आपका, सपोज कीजिए कोई, अब ये आपको ब्रेक लगाते हैं तो आपको देखता है कि भी कितना स्ट्रेन आ रहा है, फिर आपको फ्लूइड प्रेशर देता है ईच व्हील पे। तो बेसिकली जब आप इस तरह से एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर, लेकिन आप सेलेक्टिवली एडजस्टिंग ब्रेक फ्लूइड प्रेशर ऑन द ईच व्हील थ्रू सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, कि कितना कितना लगाना है, कितनी तेजी से लगाना है, वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा है। तो मीन्स आपको सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर को कमांड दे रहा है उसको उससे कोरिलेशन में, तो वहां पर आप पेटेंट के लिए सोच सकते हैं। लेकिन आपने नंबर को कैलकुलेट करने का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो इट्स जनरली सिंपल कैलकुलेशन, तो वहां पर आप पेटेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेथड ऑफ सॉर्टिंग, मेथड ऑफ सॉर्टिंग अगर आप कर रहे हो कि सबसे छोटा नंबर कर लिया, फिर सबसे छोटे को रख दिया, फिर उसके बाद बड़े को तो रिपीट कर दिया स्टेप, तो सिंपल एल्गोरिथम प्रोसीजर है, तो ये पेटेंट के बाहर है। It's just a method of sorting number and operating in a features ABC on those numbers. It can be done completely in mind. Basically, sorting algorithm. So it's a non-patentable subject. सिंपल सा एक देखो, लेकिन अगर आप इसको कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करते हो, एक शॉर्टेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किया, फिर स्वैप किया, उसको टॉप पे लेके गया, फिर वापस चेक किया, फिर रिपीट करते गए स्टेप्स ए बी ए और बी वापस, जब तक ये सॉर्ट नहीं हो जाता। तो ये सिंपल सॉर्टिंग मेथड है जो कंप्यूटर से इंप्लीमेंट करने पर भी पेटेंट के बाहर है। लेकिन अगर वही सॉफ्टवेयर मेथड अगर आप किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हो,
जिससे कुछ एक इंडस्ट्रियल आउटपुट कंट्रोल हो रहा है, तो वहां पर आप पेटेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं. So it is not giving any technical contribution, simple sorting, so it's not eligible patent system. लेकिन यहाँ पर देखिए आप हार्ट मॉनिटरिंग apparatus, यहाँ पर आपका सेंसर है और सेंसर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ सिग्नल को पेशेंट से रिसीव कर रहा है, और यहाँ पर आपने मीन्स लगा रखे हैं इन सिग्नल को प्री प्रोसेस करने के लिए, ताकि कोई एक्स्ट्रा नॉइज है, एक्स्ट्रा कोई डेटा जो यूजफुल है वो सप्रेस हो जाए. और न्यूरल नेटवर्क आपने यूज किया हुआ है इरेगुलर हार्ट बीट को, तो यहाँ पर एक आपका एक कार्डिक पेसमेकर का फंक्शन है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आपकी फंक्शनलिटी अचीव हो रही है, तो यहाँ पर आप पेटेंट के लिए सोच सकते हैं, यू कैन गो फॉर पेटेंट. तो बेसिकली इट्स एन apparatus, it is using AI, it's using ML, it's using neural network, है ना. तो सेंसर इज ए फिजिकल थिंग्स एंड न्यूरल नेटवर्क एक डिजाइन किया गया है टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई इरेगुलरिटी. तो इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन हो आपका, तो यू कैन गेट अ पेटेंट एलिजिबल सर्टिफिकेट. Now see, basically for drafting a patent application, you should involve these topics. One is title of invention, then the field of invention, then background and prior art means prior work already done. Then what are the objectives of your invention? Then there is summary, then description, drawings and examples. Examples how you can achieve it, on what temperature it is working, on what command it is working, what type of algorithm it is using, what type of sensor it is using. If using A sensor, then B sensor, then C sensor, what are the outputs? So different embodiments we can show. Then scope of the invention, what are the different claims, then abstract. So all these headings you have to submit with the specification. Then these are the drawings. You have to number the drawings, like part 14, 2, 13, 3, 5. You cannot give the name, you have to give the number. And in a specification, you need to show 7 belongs to this, 4 belongs to this, 2 belongs to a strap, 7 belongs to a suspension, whatever it is. So आपको वहां पर शो करना है, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग्स पे क्या दिखाना है, केवल सिंपल नंबर. और ट्राई टू वर्क इन टर्म्स ऑफ फंक्शन. अगर आप ब्रश यूज कर रहे हैं कहीं, तो लिखिए आप क्लीनिंग आर्टिकल, that is more appropriate. If you are using camera, then you should show image capturing unit. Okay, if you are using pen pencil, then you can use writing instrument. Then अगर आपका ball bearing, उसको you can write plurality of balls. There are many balls. तो toy ball को you can write spherical object with fluffy filaments to promote shore capture. So different terminology. अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैन बी यूज्ड फॉर बैटरी. फॉर ट्रांजिस्टर यू कैन यूज सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस विद कंट्रोल इलेक्ट्रोड. फॉर ट्रांसफार्मर यू कैन यूज galvanically isolated electrical coupling means. So we are trying to elaborate the particular component in terms of its function. So claim, which is very important. Now you see what is the how we write a claim. अगर आप लोग कंप्यूटर साइड से या मैकेनिकल से किससे, you can easily visualize a data input device comprising an input surface adapted to be locally exposed to pressure or pressure force. A sensor means disposed below the input surface for detecting the position of a pressure. तो यहाँ पर हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, एक इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं. और इनपुट डिवाइस कैसा है, आपका डेटा इनपुट डिवाइस है, जिसमें क्या है, आपका इनपुट सरफेस है. जैसे आपका कीबोर्ड में आपका 1 2 3 होता है, तो यहाँ पर लोकली एक्सपोज टू प्रेशर, जहाँ पर आप 1 प्रेस करोगे तो 1 आउटपुट आ जाएगा, प्लस लगाओगे तो आपका एडिशन ऑपरेशन एक्टिवेट हो जाएगा. और सेंसर मींस डिस्पोज बिलो द इनपुट सरफेस फॉर डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द प्रेशर. तो सेंसर है तभी तो आइडेंटिफायर है, 1 आपने प्रेस किया, 2 प्रेस किया, व्हाटएवर यू प्रेस. तो देखिए आप फर्स्ट क्लेम मैंने कैसे लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल क्लेम है. तो इस तरह से आप क्लेम राइट करते हैं. तो ये इनपुट डिवाइस कुछ भी हो सकता है, आपका कीबोर्ड, आपका माउस भी हो सकता है, जॉयस्टिक भी हो सकता है, माइक भी हो सकता है, बारकोड भी हो सकता है, स्टाइलस पेन भी हो सकता है, वेब कैमरा भी हो सकता है, टच पैड भी हो सकता है, टच स्क्रीन, फिंगरप्रिंट रीडर भी हो सकता है. तो मेरा क्लेम कितना ब्रॉड है, सब कुछ कवर कर रहा है. मैंने कहीं नहीं लिखा कि आई एम यूजिंग फिंगरप्रिंट रीडर, आई एम यूजिंग टच स्क्रीन. मैंने ब्रॉड क्लेम किया ताकि मेरे सारे एस्पेक्ट्स ज्यादा कवर हो सके. अब आप ये चीज देखिए,
अब आपने एक एथलेटिक शू को क्लेम करना है, तो लेफ्ट अपर पोर्शन, राइट अपर पोर्शन, देखिए दो पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन, सोल पोर्शन। अब नीचे नीचे जो क्या होता है आपको सोल पोर्शन होता है। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड और सोल पोर्शन। अब देखिए आप, सोल पोर्शन इंटीग्रली कनेक्टेड टू द सेड लेफ्ट एंड राइट पोर्शन। तो सोल पोर्शन है जो आपको कैसे कनेक्टेड है, लेफ्ट और राइट पोर्शन से इंटीग्रली कनेक्टेड है, एंड मीन्स फॉर डिटेचेबली फास्टनिंग सेड लेफ्ट पोर्शन टू द सेड राइट पोर्शन। इसका मतलब जो आपके दोनों लेफ्ट पोर्शन जो शूज का ऊपर, उसको आप जैसे फीते लेस को टाइट करते हैं बन जाता है, तो वो इंटीग्रली कनेक्टेड कैसे, दिस फास्टनिंग मैकेनिज्म से। इट कैन बी लेस, इट कैन बी वेलक्रो, व्हाटएवर इट इज। आप देख रहे हैं वेलक्रो। तो ये आपका एक पेटेंट क्लेम है। देखिए आप कैसे अपन ने आइडेंटिफाई किया, कैसे डिफरेंट, इसको 4 कंपोनेंट में डिफाइन कर दिया, लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन, सोल पोर्शन और डिटेचेबल पोर्शन। तो इस तरह से आप किसी भी आप क्लेम को डिफाइन कर सकते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट शो कर। तो you can see left portion, you can see the right portion, you can see the sole portion, you can see the detachable means. So in this way you can write a claim. Now you see there is another claim of carbonating a beverage. A method for carbonating a beverage comprising the steps of, you see, a method providing the first and the second holding tank. There are 2 tanks, first tank and the second tank. Filling the first holding tank with water, एक होल्डिंग टैंक में आपने वाटर भर दिया, वाटर फिल कर दिया। फिलिंग द सेकंड होल्डिंग टैंक विद कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे में आपने कार्बन डाइऑक्साइड पंप कर। अब नाउ यू सी पंपिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेकंड होल्डिंग टैंक टू द फर्स्ट होल्डिंग टैंक। तो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक पंप में, उससे दूसरे पंप में आप उसको पंप कर रहे हो, उसको थ्रू एनी मीन। नाउ आफ्टर पंपिंग द CO2 हम इसको एजिटेट कर रहे हैं विद द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर इन द फर्स्ट टैंक for a predetermined time, maybe 30 minutes, maybe 40 minutes like this. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग इस तरह से क्लेम को डिफाइन कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पेटेंट ड्राफ्टिंग एंड पेटेंट बेसिक्स। तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि पेटेंट का बेसिक्स क्या होता है, कैसे क्लेम्स क्या होते हैं, आपका क्या क्या पेटेंट के बाहर है, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, कहाँ ध्यान रखना, कहाँ ध्यान नहीं रखना, वो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो नाउ वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर सेशन। Yes, participants, now we are having a query session. So if you are having a query, you may ask. Pooja Sharma is asking something. Because sir, one question is there from Pooja Sharma ma'am. How to search already published patents in particular field? Okay. Basically, if you want to go for searching, there are various databases, like Indian Patent Office's database. In past, like that, eSpaceNet is also there for European patent. Some, I think Google Patent is also covering various databases, including Chinese and translated Chinese and Korean patents. So basically, you can go for, I think, Google Patent. If you use, then it is very useful because it's covering various patents from various jurisdictions, like Chinese patent, Japanese patent. Sometimes you can get a US patent also in the same. So I think you can go for Google patent, then eSpaceNet also I recommend, because it is very user friendly. It gives translated version of the document also. So so it depends on your requirement. There are paid database also. We charge for your hourly use, but I think it is not feasible to subscribe for this paid database for a single patent. So better you can use for Google patent and eSpaceNet. And if you require, you can go for Indian patent. And you have to use the keyword, like suppose there is sensor, so you can use sensor, sense, various sensor, sense, or you measure. You can use different keywords to exactly locate what are the relevant patent in that area. If you use sensor and someone uses sense mechanism, then you will miss those documents. So you need to properly identify the keywords need to be used for searching. Manish sir, unmute. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Next question is from Mr. Pankaj Kumar, and he is asking, how can we patent our trademark and from where? Any portal information if we can provide. Okay, basically
you cannot patent a trademark. You can register a trademark. Patent is a different technology. Okay, patent is for invention. Trademark is for any graphical. So there is a website, ipindia.nic.in. Government website is there, trademark search, wherein you can search your trademark. Like you want to register Surya Vansham, suppose example, Surya Vansham for your stationery item. Then you have to go to class 16 and you have to see whether Surya Vansham is registered or not in class 16. If someone has registered Surya Vansham, then you cannot register Surya Vansham because they are similar. Okay, and you have to identify whether Surya Vansham movie has already producer already registered it in various classes. So various aspects need to be covered. Then if our search is okay, if we are confirmed that okay there is no conflicting trademark in the registry, then we can go for applying the trademark. Madhurya ji, QA में डालो. Right. So next question is from Sameep Narayan Sinha ji. And question is, how much of a difference can we have in two similar looking things? For example, there is slice, the cold drink slice, and there is fruity as well. Both are almost alike. So how can one determine that this much percent must be different from something patented previously? Like he's asking if two products are same, then what are the parameters upon which we can define them that it can be patented or not? Okay, actually there are two principles. In trademark or trade dress or copyright, there are 2-3 principles. One thing we have to check overall impression. I told you Bisleri. Bisleri is using a green background. So if someone using green background or the similar writing font, then it may be confusing. Like Fruity and some Mirinda, you can say some other brand. So you see, mango are common. Mango is, if you are giving a mango drink, then mango can be used by any person. It's a generic to trade. But your background, your writing of your logo, your selection of same type of mango, same like 2 mangoes in here, 2 mangoes here. No, you can use one mango with a different shape. मैंगो भी 10 तरीके के आते हैं ना, एक ही तरह का मैंगो थोड़ी आता है. तो कस्टमर को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर ओवरऑल सिमिलर लग रहा है वो, if it is looking overall similar and customer is getting confused that both products are same or similar, then there is a liability of infringement. So we have to check. Our logo and their logo should be different. Our background is, their background should be different. Our way of putting mango should be different from their way of putting mango, so that customer is not confused. अगर customer confused हो रहा है तो फिर trademark का मतलब ही नहीं. Okay. Right. So next question is from Mr. Manish Mathuria, and he is asking, is there any way to apply for patents without any fee charges? Actually, government fees you need to actually government fees you need to bear. You cannot give, you need not to give professional, but government fees you can see the now patent database is open. You can see various drafted patents already granted. So you can see how you can draft your invention, how you can prove that you can highlight your novel feature, inventive feature, and then how you can write your claim. But government fees, like if you are filing in your name as an individual, then 1,600 government fees and 4,000 examination fees you need to bear. So minimum fees that you need to bear. After that, there will be objection from patent office. You need to reply that is free of cost. You can attend hearing online also. But thing is that you should be careful whether your claims are okay. You are not claiming claims which are not accepted. Like you are claiming a software. The software is not allowed for patent protection. You need to give a software directed with a particular hardware, like particular sensor, and sensing a particular industrial temperature of machine. So you need to identify how to put the claim. Second, you need to give how much disclosure you need to give. Suppose आपने कोई मैकेनिज्म डेवलप किया, कुछ टेम्परेचर रेंज पे काम कर रहा है, तो आपको सारे डेटा देना पड़ेंगे कि 40 डिग्री पे क्या रिजल्ट आ रहा है, 60 डिग्री पे क्या रिजल्ट आ रहा है, और 45 डिग्री पे क्या आ रहा है, 50 पे क्या आ रहा है. कंप्लीट डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा आपको. ड्राइंग्स आपकी प्रॉपर होनी चाहिए. ड्राइंग्स में आपका एक कंपोनेंट डिस्क्राइब होना चाहिए, क्या कंपोनेंट क्या है, कहाँ अटैच है, कैसे वर्किंग कर रहा है. तो यू कैन डू, नो इट्स नॉट रॉकेट साइंस. सो बट यू हैव टू पे द गवर्नमेंट फीस. आप नेट पे देख सकते हैं, कुछ पेटेंट ऑलरेडी ड्राफ्टेड इजीली मिल जाएंगे आपको. तो उसके बेसिस पे ड्राफ्टिंग करके सबमिट कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हैं, या डायरेक्ट हार्ड कॉपी पेटेंट ऑफिस में बाय पोस्ट भेज सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी. बट यस, इट कैन बी डन ऑन योर ओन. Right, sir. So next question is from Rishi Shukla. How a software can be patented? How a software can be patented? Yeah. Actually,
earlier software was strictly asked for non-patent, but nowadays software are allowed patent on some particular aspect. Like suppose you have developed as operating system. Operating system is also system software. So if it is giving some throughput is increasing, it's more faster than the earlier version, then you can claim the software. Okay. So any industrial process, any process which is monitoring industrial process properly, adequately, then it can be better. But simple software of calculating two numbers, simple software of analyzing a image with the pixels. So those software are not allowed. Very specific software which is high-end requirement are patentable. Otherwise, software can be protected under copyright. One more question is from Mr. Ajay Gupta. Okay. And his question is like that he is running a startup and he wants to know, is there any way to combine these patent, copyright and trademark field with his startups to launch in the market? Like, is there any requirement that he should go in this direction with his startup for the next upcoming future? He want to open a consultancy firm like this? No, not consultancy firm. He's from his question, I can get only that he's trying to deploy new items in the market. Like, okay, so if he's a startup and he ensures that there are a very unique product, then he can register a trademark for the product. Like suppose Milton is a trademark, so he can have trademark for his particular name. Then he can register the design of the product, what is the shape and configuration. Then if a functionality is new, if he has developed an antiseptic to kill the bacteria like this, suppose nowadays due to this coronavirus situation where various people are dying in this area, so he can claim the composition. Okay, this is a novel composition, this is a herbal composition, and it is used to kill the bacteria without harming your hand. क्योंकि आजकल ज्यादा सैनिटाइजर यूज करने से आपके हाथों में भी कुछ एलर्जी हो सकती है, तो एलर्जी फ्री हैंड सैनिटाइजर, so those composition can be patented. So he can go for design of the bottle of the hand sanitizer, he can claim the composition of sanitizer as a patent, or he can register the trademark of the name of the sanitizer. Yeah. so sir, there are no queries now. Okay. So it was a good session, sir. Very nice session, and we got to know very important things to us and for our different sectors as well. The beauty of the session was that this session is not limited to any industry. Like it can be used by any person who is even supervisor level, who is at manager level. Anyone should know at least this basic information. Right. So participants, I would like to inform you that Mr. Vikas Asawat is an alumni of Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Law, IIT Kharagpur. He has also earned Master of Intellectual Property Law. He is right now serving as a attorney of patent and trademark and copyright in Government of India. He has also qualified patent attorney and registered with Patent Office, Government of India. He had been nominated to participate in the University of Washington Law School, National Law University, Delhi, West Bengal National University of Judicial Science, Innovations in Indian IP teaching and research workshops. Participants, he has also contributed much in this field, that he has consulted around 300 patents, 80 industrial designs, 450 trademarks, and 75 copyright applications in last 10 years. So he's the one who is having so much knowledge in this field. So guys, from my side, it was like a session for very useful for all of us. And now I would like to call Mr. Deepak Mode for the vote of thanks. Deepak sir, over to you. Thank you very much, Manish sir, for inviting me to propose vote of thanks. First of all, I am very thankful to Vikas Aswat sir, for conducting such session which could be fruitful for everybody, because we have been striving hard to get patents. So this kind of presentations will help us to understand the whole process of patent and IPR. So I am very thankful to Vikas sir. And this association is not for only webinar. We are expecting
long association in terms of getting patents and intellectual property right. Thank you very much, Vikas sir. Thank you, sir. Thank you.